Now the question is, what we do with data? If I have data, what we have to do, or how we go for data analysis? So my one question is there. Suppose we all Indians are set to talk on a question, opinion about Pakistan. And the options are two, good, bad. So how many data will be generated? 2. हर हिंदुस्तानी से यह प्रश्न पूछा गया तो कितना डेटा आएगा? 140 करोड़. और अगर कहा गया कि you speak your answer at the same time like with थाली जो पीटे थे. So how many sounds will be generated? 140 crores. Whether anyone can recognize what these sounds are saying? No. The data analysis is refining the sound. Okay? ये जो 140 करोड़ आवाज आई, उसमें क्या था, ये बता दो, that is data analysis. और ये डेटा कलेक्ट क्यों किया गया था? किसको बताने के लिए? हिंदुस्तान के लोगों को? नहीं. कहां के लोगों को? जो हिंदुस्तान के बाहर हैं. विश्व को. और विश्व को बताने के लिए कौन सा फोरम है? यूएनओ. तो हम कहेंगे कि इसमें से एक साउंड खोजो केवल, और उसी साउंड को भेज दो जाके बोला है. So the data analysis is converting the raw information, raw measurements into a few numbers. Okay? Converting the raw information into few numbers so that we can say something about data. Okay? So, there are some tools which we learned from class 6th. Sorry. These are the tools, basic tools. What is the measure of central tendency does? Central tendency क्या करता है? आपके वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज हैं, उसको एक वैल्यू में ट्रांसफर कर देता है. ठीक है? और आप अपना रॉ डेटा साइड में रख देते हो और दुनिया को वही वैल्यू दिखाते हो. By seeing that value, the person who are interested get some idea about your data. Okay? क्या मिलता है? एक आइडिया मिलता है. And idea is called model. Idea is called model. It means we provide model of the variable by measure of central tendency. Okay? Do you have idea of model? कहीं देखा है कि नहीं मॉडल? किसी ने मॉडल देखा है? किसी ने नहीं देखा? विश्वनाथ मंदिर पे ताजमहल का मॉडल दिख जाएगा, जाओ. बीएचयू का भी मॉडल विश्वनाथ मंदिर पे दिख जाएगा. So what is model? Model is a theme to realize original situation. Model is a theme to realize original situation. आपने ताजमहल की एक फोटो देखी, that is the model of original Taj Mahal. Now, a model may be good, a model may be bad. And there is no best model in the real world.
Okay? Arithmetic mean is the first model of statistics. Okay? Now, if नोट करना चाहे तो नोट करिए. If आप कहोगे कि तो पढ़ना कुछ और था, पढ़ाने लगे कुछ और, ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि हम वहां तक पहुंचने के लिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको ये बताएं. फॉर ए डेटा, लिखिए, फॉर ए डेटा द मीन, मीडियन एंड मोड आर 50. सबके लिए कितना है? 50. What does it mean? What does it mean? आगे लिखिए, आगे लिखिए. The mode 50 tells us the value with measurement 50 was most frequent in my measurements. मीडियन की डिफिनीशन आप क्या जानते हो? मीन्स इस 50 को बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? मीडियन 50. हमने मोड 50 आपको बोल दिया, ठीक है? हाँ, आगे लिख लीजिए इसमें. It do not provides idea of each measurement. किसका आइडिया दिया इसने? केवल उसका दिया जो सबसे ज्यादा बार आया था आपके मेजरमेंट में. हर वैल्यू की आइडिया. हेंस इट इज अ पुअर मॉडल. मीडियन 50 सेज. आपको क्या पता है मीडियन की डिफिनीशन? So what does it mean? 50% observation lies on either side. So I'm giving some example separately. Write it separately. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is median? 4. And how many are less than 4? 3. How many are more than 4? Your definition is valid. Clear? Now again, write again. 1, 2, 2, 2. ठीक है? 7 वैल्यूज बोले थे ना? 3, 4, 5. What is median now? 2. How many are less than 2? 3. 1. And how many are more than 3? Whether they are 50% both sides. So it is not accurate definition. Okay? So there should be at least 50% either side. एक तरफ 50% से कम होगा तो दूसरी तरफ 50% से ज्यादा होगा. ऐसी वैल्यू वो खोज के देता है मीडियन. Okay? Generally people say it center value. Again, so this 50 says that about 50% of the measurements, मैं exactly नहीं लिख रहा हूं, about, were less than or greater than 50. It again do not provide idea of क्या?
ईच मेजरमेंट, क्योंकि ये बता दे रहा है कि 50 से छोटे लगभग इतने थे, 50 से बड़े इतने थे. सो अगेन इट इज अ क्या? पुअर मॉडल. The mean 50 says each observation was measured as 50. Each observation was measured as 50. ये मॉडल है ना, तो मॉडल में हम क्या करेंगे? खाली सोचेंगे, सच्चाई तो है नहीं. ओके, सो ईच मेजरमेंट वाज 50. सिंस, आगे लिखिए, सिंस इट प्रोवाइड्स अस आइडिया ऑफ ईच ऑब्जर्वेशंस, hence it is a better model in comparison to median and mode. But this model may have error. होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि सच्चाई कुछ और है. आप सबको क्या बोल दे रहे हो? 50. If this error is very small, then it will be a good model. Otherwise, a bad. इसका मतलब अब हमें क्या जानना होगा? एरर. एरर. ओके, दिस आगे लिखिए. दिस एरर इज असेस्ड बाय another tool called dispersion. तो अब कितने नंबर डेटा से हम निकालेंगे? 2 नंबर. एक मॉडल का नंबर और एक मॉडल के एरर का नंबर. ठीक है, आगे लिखिए. एवरी वेरिएबल हैज इट्स शेप. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वर्ड आपने सुना है? सुना है? कैसे निकलता है? 2 चीजों से, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. मेरे पास टेम्परेचर का डेटा है सेंटीग्रेड में, उसका हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें कि ना निकालें? क्योंकि सेंटीग्रेड के डेटा में भाग संभव और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? डिवीजन है. तो आप कुछ कहोगे, दूसरा आदमी यूनिट में बदल करके उसकी दूसरी मीनिंग निकाल लेगा. हाँ, दिस वाज द पर्पज. ओके, इसे आप देखो. सॉरी, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप. How many people were in field for data collection? 3. On how many variable? On how many variable? 1. The name was monthly family income. Okay? And how many values each one was having? How many values each one was having? 5,60,162, because this much family is in Varanasi district. Okay?
So they were having numbers, different numbers, and if you count those numbers, it will be 5,60,000 like that. And they brought it to supervisor. Okay, it was quantitative or qualitative? Interval or ratio? Ratio. When they brought it to supervisor like this, so many registers, anyone will be happy or not? So this is raw. Now data analysis starts. Then supervisor suggested to the students, you convert these like this. That is called frequency distribution. So you have to prepare a frequency distribution of each of your variable in your analysis to have some idea. Okay? Then he suggested to the students, you prepare like this and then make a graph like this and show me the graph. Okay? This picture is not actual picture of that data. Okay? After doing the exercise, they came and all were doing separately. After doing the exercise, they came with these figures, first, second, and third. Supervisor was a little bit परेशान, confused. क्यों? क्योंकि each one was having same data. Then why the picture of data is different? Okay? Then he told, out of these you all, only one is correct. Now my question with you people, whose figure is correct? I'm not asking from those who have already seen these pictures. Some people be confused with the mathematical, statistical term. And they say, if data is large, it will be NPC, means bell-shaped. Since here data is large, then they feel that it will be like this. It is called shape of the data. So why I'm saying it, showing it, just to conceptualize what is the meaning of shape or distribution of variable. Okay? The second one is correct. She was right. Now I will ask how she told. So it was, I do not remember the question, but there was one figure 92 that told maybe the majority lies in the lowest part. That was why. What? So the majority income lies in the lowest. Yeah, same thing. Many of the variables have a regular nature in life. Okay? Regular nature in life, like income. In any society, in mass, not a particular, if you go in any society, the distribution of income will be skewed. More and more people will reside on, more and more family number will lie in the lower income in comparison to middle or higher income. Okay? But in many situations, for many variables, like hemoglobin, if you measure hemoglobin of each Indians, you will get 140 crores are hemoglobin value, if it is possible. And if you make a graph like this, certainly you will get a figure like first. Okay? So many variables have their inherent nature in society or real life. And the distribution tells that situation. And hence we want to know what is the shape of my variable. So one way is that you make the figure, another way is that you go for
calculation of two more numbers that is called skewness. So by skewness, what do we know? We just know. If I make shape of my variable or data, whether it will be symmetrical or not. The symmetrical shape was the first one. Or any shape, if you cut that shape from anywhere in such a way that by folding we can overlap both, completely overlap, then it is called like U letter. If you cut U letter from bottom and fold, it is symmetric shape. Okay? Like this heart, figure of heart. You cut and fold, symmetric. Okay? So skewness just tells that whether it is symmetric or not. It is different thing why we want to know whether symmetric or not. It helps us in decision making. If it is symmetric, decision making is very easy in comparison to non-symmetric or skewed. The kurtosis is controversial. What it measures, it is controversial. If you read the books, it will be written that it measures peak of the figure. But it is not true. And it is now by researchers and have shown that this idea is not a good idea to define. Actually, though it is always, again it is in a controversy, it tells about outlier in data. A higher kurtosis value says that your data is having outlier. And lower tells that your data is free from outlier. Are you remembering my first figure of previous PPT? First figure. Every figure provides two tells. One in left side, another in right side. The figure has tells. You make a figure on your copy like this, a bell shape. A bell shape. Okay? And extend one tell farther. किसी एक टेल को थोड़ा लंबा कर दीजिए. Okay? It means this data has outlier. अगर आप इस तरह के शेप का डेटा का कुर्टोसिस निकालोगे, it will be higher. 6, 10, 12, like that. Okay? And if your data is having outlier, then data analysis is more typical. So it provides us knowledge about the outlier. तो मुझे लगता है इस पीपीटी में रिकैप यहीं का होगा. Okay. Next one. Generally people ask, सर मैं डेटा रखा हूं, इसमें मीन निकालूं कि मीडियन निकालूं कि ज्योमेट्रिक मीन की, हार्मोनिक मीन की, कितने मीन? How many means are there? It is still not defined. So I'm giving an example. And you can understand, no one can say, क्या निकालो? Okay? There was a patwari. There is a joke on statistics. And people say that you can do anything with statistics. And there is a joke, I'm not exactly remembering that. Patwari ka kunba duba kyun?
Kumbam family. There is a post, a land record inspector. Those people were initially knowing calculation in the earlier era. So they were more brilliant and they were knowing how to add, multiply quickly. So government provided the work of land record management to those people. So he was going with his family, and all family members were of height more than 6 feet. In the way, there was a pond, and there was no overbridge to cross. But some data was given about the depth of pond, like this. He was knowing little bit statistics, so he thought, let us get a model for this data. And if the model value is lesser than our height, then we go, okay? So he calculated mean depth, 4.7 feet. Median depth, 4 feet. Every measure. And all model of statistics were saying that go away, go. Because they were of height 6 feet. And what happened? All were Ram Nam Satya. And people laugh on statistical measure tools. So whose fault was there? It was statistics, or it was the wrong use of statistics? Why it happened? Due to outlier. Due to outlier. So what was the decision-making tool in that situation? It depends on objective. His objective was safe crossing. So his Modi means representative value. Not the 4.7, not the 4, not the 5, not the 3.73. It was 15. So it depends on what you want to infer. What is your objective? The choice is based on that. Okay. So till the time I was discussing only about what the number we calculate for a single variable. And that is called univariate analysis. Okay? Now I'm coming on bivariate analysis, which the topic was given to me by Ashish. So, what is the basic logic? एक डेटा लिखिए 1 2 3 4 5 आपने लिखा था ना So how many data points are there in that data? How many data points are there? 7. And एक दूसरा भी लिखा था How many data points was there? 7. Now if I say you show this data on graph, the first one. So what do you do? अगर आपसे कहा जाए इस डेटा को ग्राफ पे दिखाइए तो आप क्या करोगे? एक लाइन खींचोगे, ठीक है, और उस पे पॉइंट्स दिखाओगे कितने? 7 को पहले की बाद में स्केल डेटा है तो डिफरेंस भी यहां मीनिंग रखेगा, ऑर्डर भी मीनिंग रखेगा और अमाउंट भी मीनिंग रखेगा. ठीक है, क्लियर? और अगर दूसरे वाले को दिखाओगे तो कितने डॉट दिखाई देंगे? अब बाकी 3 डॉट कहां चले गए? एक ही पॉइंट पे. और जब एक ही पॉइंट पे डॉट रखते चले जाएं तो डॉट की ऊंचाई होगी कि नहीं? इसे कहते हैं बार डायग्राम.
ठीक है, इसे कहते हैं बार डायग्राम. ओके, सो I have this data. I can show this univariate data or multivariate data. Univariate data. I can show this on graph like this. Okay? And इसका एक नेता भी होगा कि नहीं, मॉडल, चाहे मीन चाहे मीडियन. That will be again a point. वो भी इसी पे होगा कि इसके बाहर कहीं होगा? इसी में होगा. See the red one. That is mean. Okay? So data and data summary is in that range again. Mean is this much. Error is this much, standard deviation. Okay? I have not calculated skewness and kurtosis for this data. Okay? So if I providing this much summary of this data, it is univariate analysis. Okay? Similarly, I have again a different variable, expenditure. And I'm ignorant of first one. फर्स्ट को हम नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? सेकेंड को. तो अगेन इट विल हैव अ लाइन. अगेन इट विल हैव अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. ओके, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन एंड स्क्यूनेस, kurtosis, like that. Clear? But if I keep my eye, what I'm doing? I'm keeping my eye on each one separately. या तो हमारी आंख किस पर है? इनकम पे है, या तो हमारी आंख एक्सपेंडिचर पे है. अगर हम अपनी आंख दोनों पे रखें, then what will be the data? Income, expenditure. How many points were in income? 1, 2, 3, 4. How many? 12. How many points were in expenditure? Now, how many points are for income and expenditure? 24. Again 12. Again 12, but my vision is changed. Initially, I was seeing the points online. Now my vision is changed and I'm seeing the points like this. Okay? So this picture is the picture of bivariate data. Okay? Again, the question is, what we do with this bivariate data? The answer is same. Search MOD means measure of central tendency. Search the error, difference. That is dispersion, nothing else. If how we say the central value, we just calculate central value of first and second and see both at a time. Okay? So there is a red point here. शायद यहाँ नहीं होगा. So it is whether, okay, whether the values are varying or not, points are moving or not. Moving. And initially, whether the points of X were moving or not. नहीं, सारे points एक ही जगह थे. Moving. Points of Y were moving or not. Points of both are moving or not. This movement measurement is called variance in univariate
and covariance in bivariate. How much the points are moving, और कहां से in comparison to center. ठीक है, तो वहां पे हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन जानने के लिए कि कितना मूवमेंट हो रहा है. यहां पे हम क्या निकालेंगे, कोवेरियंस. सो कोवेरियंस टेल्स, इंटर कर दो, क्या हुआ, हाँ चल रहा है क्या, चलो चलो हो गया. पॉइंटर है सर, ऊपर नीचे, ये नीचे वाला है ना, ठीक है. सो द what additional work we do, just we want to know what is covariation. जरा एक डेटा लिखिए, एज ऑफ 5 चिल्ड्रंस, एज ऑफ 5 चिल्ड्रंस, 5 5 5 5 5 5 बार. डेटा मूव कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है. कोई स्टैटिस्टिक्स की जरूरत नहीं है. स्टैटिस्टिक्स की जरूरत कब होगी, और मूव बताएगा कौन, वेरिएंस या कोवेरियंस. बाईवेरिएट डेटा के लिए कोवेरियंस, यूनिवेरिएट के लिए वेरिएंस. ओके, अब इसे निकालते कैसे हैं, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है. एक सेंटर निकालेंगे, इस डेटा का एक सेंटर होगा जिसे कि मीन कहेंगे, एक्स का मीन यहां से यहां, वाई का मीन यहां से यहां. अब देखेंगे कि यह बिंदु इन बिंदुओं से कितना दूर है, यही कोवेरियंस है. अब दूरी निकालने के, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, हॉरिजेंटल लाइन पे, तो अब दूरी निकालने के लिए हमें दोनों से दूरी कैलकुलेट करनी होगी, एक पॉइंट की, एक्स से भी और वाई से भी. यही काम यहां पे किया गया है. और किससे निकालते हैं, सेंटर से, अपने मॉडल से. तो मॉडल से कितना दूर है हमारी वैल्यूज, ये हमारा इसका मीन था. तो इस डेटा का हमने ये जो कैलकुलेट किया, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, दिस इज कॉल्ड कोवेरियंस. नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, whether data has unit, होगा कि नहीं होगा, तो मीन का यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा. स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट होगा कि नहीं होगा, नहीं. वेरिएंस का यूनिट लिखिए, लिखिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एज है. मीन कितना हुआ, 2 ईयर, ठीक है, यूनिट है. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करोगे, 2 को माइनस करोगे सब में से, हाँ, फिर स्क्वायर करोगे, फिर उस स्क्वायर वैल्यू का मीन निकाल लोगे, जोड़ करके 3 से भाग दे दोगे. यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा. और जब आप जोड़ करके स्क्वायर को भाग दोगे तो वो वेरिएंस कहलाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कहलाएगा. और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो वेरिएंस का यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा भाई. हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट होगा कि नहीं होगा, होगा. एक ही होगा कि अलग अलग, एक ही होगा. जरा लिखिए, ₹4 मल्टीप्लाइड बाई ₹4, हाउ मच इज द आंसर, 16. लिखिए अपनी कॉपी पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर. तो यहां पे कहा है स्क्वायर बोल रहे हैं, वहां नहीं बोल रहे हैं. रुपीज में है तो हमारे मन का है क्या,
तो जाने दीजिए, केजी लगा दीजिए, 4 kg इंटू 4 kg, 16 kg कह देंगे। नो, units are also multiplied. So the first one will be 16 rupees square. The first one is 16 rupees square. Okay? And in square we measure area. And dispersion measures distance. Or distance is always in original unit. So why, after calculating variance, we take square root to remove that square. Okay? ठीक है. So variance has. Now the question is covariance unit free? No. क्यों? क्योंकि इसकी भी यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट होगी, इनके मीन की यूनिट होगी, इसके मीन की यूनिट होगी। यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। अगर दोनों अलग अलग यूनिट में हैं तो दोनों यूनिट मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है? एक ही यूनिट में है तो स्क्वायर हो जाएगा। इनकम है तो रुपीज स्क्वायर, हाइट और वेट है तो सेंटीमीटर इंटू केजी। सो इट इज नॉट यूनिट फ्री। ओके? अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सो कोवेरियंस मेजर्स व्हाट? कोवेरियंस बता चुका हूं कि इट इज जस्ट लाइक वेरिएंस ऑफ यूनिवेरिएट डेटा एंड इट मेजर्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। लेकिन कहां पर? लाइन पर नहीं, स्पेस में। In bivariate, to get a single number which represents the deviation from both variables from their respective mean is covariance. The covariance measures joint variability. दोनों साथ साथ कितना बदल रहे हैं? Joint variability of two variables. Up. The joint variability may be linear or non-linear. ठीक है? आगे आएगा, ये सब शब्द देखा जाता है। हाँ, ये बाइवेरिएट डेटा का फिगर है कि यूनिवेरिएट डेटा का? बाइवेरिएट का। ठीक है? अगर आप अपनी आंख केवल इसी लाइन पे रखोगे तो यहां डेटा है कि नहीं है ना? तो आप यूनिवेरिएट डेटा देख रहे हो। अगर आप अपनी नजर केवल यहां रखोगे तो यहां भी डेटा है, यूनिवेरिएट देख रहे हो। लेकिन जब आप अपनी नजर यहां रखोगे तो ठीक। अब अगर आपका कोई बाइवेरिएट डेटा का ये डॉट डायग्राम इस तरह से दिख गया, कई तरह से दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है। ठीक है? तो हम कहेंगे कि यहां पर लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में, और यहां पर लीनियर रिलेशन नहीं है। लीनियर रिलेशन का मतलब होता है कि एक सीधे रास्ते पे सब पॉइंट मिले। ठीक है? कोवेरिएंस की वैल्यू हमें लीनियर रिलेशनशिप की आइडिया देती है कि है कि नहीं। अब रिलेशनशिप, अब आज ही तक हमारे स्टूडेंट्स को छोड़ करके, कुछ लोगों को यहाँ के छोड़ करके हमारा आपसे कोई रिलेशन नहीं था ना? अब हो गया कि नहीं? हो गया। अब जब रिलेशनशिप होता है तो बात आती है कि रिलेशनशिप कितनी तगड़ी है। अगर
परफेक्ट बॉन्डिंग होगी तो दोनों को बोलने की जरूरत है क्या? अगर रिलेशनशिप की बॉन्डिंग परफेक्ट होगी तो दोनों को बोलने की जरूरत है कि एक ही बोलेगा तो दूसरे की भी बात समझ में आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, कि हाउ द रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग। ओके। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। जैसे सपोज करिए अमित शाह और मोदी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ का डायरेक्शन एक जैसा है कि उल्टा है? एक जैसा है। मोदी और केजरीवाल के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है? सो दिस इज डायरेक्शन। ओके। So first one is how much strength is there, and second is how is the direction. Okay? दोनों में रिलेशन है। अमित शाह, अरे सॉरी, मोदी और केजरीवाल में भी रिलेशन है, ठीक है, लेकिन इनके बीच का रिलेशन का डायरेक्शन डिफरेंट है। So this is okay. So this is relationship. There is a relationship and it is linear, perfect linear. अगर ऐसा हो जाए तो किसी एक की बात पूछ लो, दूसरे की बात पता चल जाएगी, ठीक है। यहां भी रिलेशनशिप है लेकिन परफेक्ट लीनियर नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप इस रिलेशनशिप को मानोगे तो हो सकता है कि कुछ केसेस में दूसरे की बात जो पता चले वो सही न हो। और दोनों का डायरेक्शन, इसके बढ़ने से इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। जैसे हम यहां चले गए तो y इतना है, यहां चले गए तो y बढ़ गया। तो एक के बढ़ने से अगर दूसरा बढ़ रहा है तो हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्शन पॉजिटिव है। और अगर अपोजिट नेचर है, लाइक दिस, x की वैल्यू यहां पे है, y की वैल्यू इतनी बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी हो गई, y की वैल्यू पहले से क्या हो गई? कम हो गई, तो हम कहते हैं कि रिलेशनशिप निगेटिव है, ठीक है। अब कोवेरिएंस इन दो बातों में से कौन सा बात बताता है? कोवेरिएंस केवल डायरेक्शन बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बता पाता। ये नॉन लीनियर का केस है। इट ओनली इंफॉर्म्स अबाउट डायरेक्शन, नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन। रीजन क्या है, क्यों, ये नहीं बताता। तो फिर से मैं उस डेटा को रेप्लिकेट कर रहा हूं। इसका कोवेरिएंस, ये स्कैटर डायग्राम था, डेटा का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ये था, और इसका कोवेरिएंस आपको मिला था 229.58 रुपीज स्क्वायर, ठीक है। मेरा डेटा 1000 में था, 15,000, 22,000 लाइक दैट। अब मैंने क्या किया, इसको 100 में कन्वर्ट कर दिया डेटा को। 15 को लिख दिया 150 100, यानी कि 10 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डेटा चेंज हो गया। स्कैटर डायग्राम देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। पहले वाले डेटा का स्कैटर डायग्राम और दूसरे वाले डेटा का स्कैटर डायग्राम का मूवमेंट देखिए, वेरिएशन एक जैसा है कि नहीं? बोलिए, है ना? जो बिंदु से बिंदु के बीच में दूरी दिख रही है पहले केस में और दूसरे केस में। पहले में डेटा क्या लिया था, 15,000 में 15 लिखा था, 3 शून्य हटा दिया था। दूसरे वाले में 15 को क्या कर दिया, 150 कर दिया, 2 शून्य हटाया, ठीक है। दोनों का डेटा का वेरिएशन सेम है,
लेकिन कोवेरिएंस की वैल्यू देखिए क्या है, अलग अलग है। लेकिन दोनों के केस में ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है दोनों में, ठीक। लेकिन स्ट्रेंथ अब नहीं बता पाओगे कि इस नंबर के आधार पे कि कौन सा स्ट्रेंथ रिलेशन का ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि डेटा वही है। ओके, इसलिए एक कारण क्या था इसका, we saw that both bivariate data were having similar scatter diagram, but the covariance of data measured in thousand and were not same. Hence, the measurement unit of variable, we cannot use covariance to know the strength. इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ जानना है तो आप क्या करो, उसका यूनिट हटाओ। अब किसी भी वेरिएबल का यूनिट कैसे हटाते हैं, कोई भी रूल ऐसा कर लीजिए कि एक ऊपर यूनिट आ जाए, एक नीचे यूनिट आ जाए और यूनिट कैंसिल हो जाए। कोई भी मेथड अपना लीजिए। एक मेथड ऐसा है जिसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड मेथड। उसमें क्या करते हैं, ठीक है, उसमें यह करते हैं कि डेटा में से उसके मीन को माइनस करते हैं। तो अगर डेटा सेंटीमीटर में था, मीन किस में आया, सेंटीमीटर में, माइनस किए तो डिफरेंस किस में आया, और उसके बाद से उस डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन किस यूनिट में आया, सेंटीमीटर में। तो अब ये जो रिजल्ट आया इसकी यूनिट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेटा, ठीक है, या जेड स्कोर बहुत सारे लोग बोलते हैं। ये यूनिट फ्री हो जाएगा, किसी भी डेटा को आप यूनिट फ्री कर सकते हो बाय दिस रूल। ओके, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसका एक फायदा है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। फायदा क्या है कि किसी भी वेरिएबल को आप इस तरह से चेंज करोगे तो उसका मीन 0 हो जाएगा और वेरिएंस 1 हो जाएगा। किसी दूसरे मेथड से चेंज करोगे तो मीन वेरिएंस अलग अलग आएंगे। So, thus we see the strength of relationship of standardized covariance is better option. डेटा को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और तब कोवेरिएंस निकालिए, तो यूनिट का कोई चक्कर नहीं रहेगा। This standardized covariance was advocated by Carl Pearson and it is called Pearson correlation coefficient, इस नाम से पुकारा जाता है। ओके, सो देखिए क्या किया गया। पहले क्या था, कोवेरिएंस, ये नीचे की चीज अगर आप न देखें तो ये किसका फार्मूला है, कोवेरिएंस का, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में, मीन भी सेंटीमीटर में, अब एसडी से भाग दे दिया सेंटीमीटर में, तो अब ये डेटा सेंटीमीटर से फ्री हो गया, ये भी सेंटीमीटर से फ्री हो गया, और फिर कोवेरिएंस निकाल दीजिए, क्योंकि अब इसका मीन 0 हो जाएगा, अब मीन माइनस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर यूज किया गया। जनरली लोग इसे इस फॉर्म में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखते हैं, इसको लिखने के तरीके पे मैं नहीं जा रहा हूं। तो अब क्या किया हमने, देखिए वही डेटा, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था, इसको हमने स्टैंडर्डाइज्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डेटा का कोई यूनिट नहीं है, इसका मीन निकालेंगे आप, 0 आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आएगा, इसका भी। अब बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मीन निकाल लीजिए, यही कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो कितना कोरिलेशन है, 0.8। अब इसका एक और बेनिफिट है कि कोवेरिएंस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू का एक रेंज डिफाइंड है। हाँ, स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरिएंस इज 83, आप इसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहें या स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरिएंस भी कह सकते हैं। ओके, हाँ, अब
आपको पहले ओरिजिनल डेटा का डॉट डायग्राम याद है कि नहीं? याद है? जब आप उसको स्टैंडर्डाइज्ड कर देंगे तो फिर से दो नया डेटा मिलेगा कि नहीं? एक x के लिए और एक y के लिए, तो उसका भी डॉट डायग्राम बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होगी तो इस डेटा के डॉट फर्स्ट और फोर्थ में मिलेंगे, और अगर रिलेशनशिप निगेटिव होगी तो इस डेटा के डॉट सेकेंड और फोर्थ में मिलेंगे। कुछ वैल्यूज डेविएट हो सकती हैं, परफेक्ट अगर है तो पक्का है कि इसमें मिलेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि r की वैल्यू कितनी क्लोजर टू 1 या -1 आ रही है। सो कोवेरियंस एंड कोरिलेशन आर टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, एक में यूनिट है, एक में यूनिट नहीं है, एंड विच आर कॉमनली यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स। बोथ मेजर्स क्या कि एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं कि नहीं, डिपेंडेंसी। डिस्पाइट सम सिमिलरिटी दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोरिलेशन इज व्हेन, कब हम कोरिलेशन की बात करेंगे? जब हम कोरिलेशन इज व्हेन the change in one item may result in the change of another item। अगर आपको इस तरह की कोई बात सोचनी है तो आप क्या यूज करेंगे? कोरिलेशन। एंड कोवेरियंस इज व्हेन you are interested to know how they are varying together। चेंज होने से क्या होगा ये आप कोवेरियंस से नहीं पता कर पाओगे, लेकिन कोरिलेशन ये बताएगा। कैसे बताएगा? तो रिग्रेशन के लॉजिक पे। 10 ए मेजर यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स चेंज इन टेंडम इज नोन एज कोवेरियंस। ओके, और भी है क्या? हाँ, ये -1 से +1 के बीच में आता है, ये आपको पता है। दूसरा वाला, ठीक है, अगर ये +1 आता है स्टैंडर्डाइज्ड कोवेरियंस, इट मींस सारे डॉट एक सीधी लाइन पे हैं, और अगर ये -1 आता है इट मींस सारे डॉट एक सीधी लाइन पे हैं लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड है। और अगर ये इसके बीच में वेरी करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोई नंबर 1, -1 से और +1 के बीच में, देन सम डॉट्स आर स्कैटर्ड। ये हमने आपको डिस्कस किया कि कोवेरियंस अफेक्ट्स द चेंज ऑफ स्केल एंड स्केल बट नॉट द कोरिलेशन। इसका मतलब हुआ कि when we change the unit of our data, then covariance will change, but standard correlation coefficient will not change. Now, which one is the better choice for bivariate measure? Certainly, it is correlation coefficient is preferred over covariance because it is well defined. And इस केसेस में आपको बताया गया होगा कि what will be the value. Message is what? See this data. If we make a scatter diagram of this data, आप अपनी कॉपी पे बना सकते हो क्या? इस डेटा का स्कैटर डायग्राम का एक रफ फिगर, एक रफ फिगर स्केच कर सकते हैं। एक्स वाई या जस्ट गेस भी करिए कि जो डॉट्स होंगे वो किसी स्ट्रेट लाइन के क्लोजर में होंगे क्या? नहीं। इसका मतलब इस डेटा को देखने से क्या लग रहा है कि रिलेशनशिप इज लीनियर और नॉट?
नॉट. ओके, अगर हम इस डेटा का कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालें, so this is the scatter diagram. Okay, and I don't check the figure. I just calculated what? Coefficient of correlation of this data. And it came to be 0.93. Means a very strong evidence of positive linear relationship. But the data is not showing that trend. Okay? तो ये कहना उचित होगा कि नहीं कि correlation is very strong? बोले? A person calculated correlation coefficient for this data. He was not bothered to see the scatter diagram, and he wrote in the paper. The correlation coefficient was 0.93. There is a strong evidence of linear relationship between x and y, whether it is correct or not. क्या लग रहा है आपको? Whether it is this statement is correct or incorrect? It is incorrect. Because if the perfect, if strong linear relationship will be there, then the points will not move like this. Points will move like this. Okay? So the message is, when you write any correlation coefficient value, you try to see what? Nature of the scatter diagram. Or check why it is like that. There is outlier. Variable y is highly affected by outlier. So what is the message? While calculating correlation coefficient, you have to check whether my data is free from what? थंब रूल जनरली आप लोग मेडिकल साइंस के लोग ये देते हो, स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग और बहुत स्ट्रांग, स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार. देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट वन, बट द फैशन इज गोइंग ऑन. सो if it is a 0.25 correlation coefficient, the people say that there is no relation, and like this there are slabs. तो ये आपको लिटरेचर में मिल जाएंगे कि कब पे क्या कहते हैं, और ये भी वेरिंग नेचर के हैं क्योंकि थंब रूल है, देयर इज नो रूल. Another term is coefficient of determination. That is called R square. R square. Many people say it model fit. But here it is not model fit. Model fit is checked when we do modeling or regression equation. So, it is a way of presenting the relationship for prediction purpose. अगर हम R square लिख रहे हैं तो हम prediction purpose से लिखते हैं, and if R is 0.8 between two variables, then its square is called coefficient of determination or R square. And says that, इसका मतलब क्या हुआ? 64% of the variation means the values की दूरी जो थी डेटा फिगर में, कहां पर? लाइन पर, किसी एक के लाइन पर, not the scatter diagram. 64% of the variation of one variable can be predicted by other variable if it is known. Can be predicted by other variable if it is known.
इसको हम लोग और आगे अभी जब एनालिसिस करेंगे रिग्रेशन वगैरह में तो लर्न करेंगे। इंटरप्रिटेशन तो बाकी काफी बातें हो गई हैं, इसको थोड़ा हम छोड़ते हैं। डेटा रिक्वायरमेंट फॉर कोरिलेशन, बस हाँ बस एक ही स्लाइड होगी, उसके बाद फिर बंद करें। पहला है कि आपके पास जो दोनों वेरिएबल होने चाहिए उसका लेवल ऑफ मेजरमेंट क्वांटिटेटिव हो, कंटिन्यूअस हो, बाईवेरिएट नॉर्मलिटी होनी चाहिए। अब नॉर्मलिटी क्या है ये भी अलग बात है। तो एसपीएसएस पे हैंड्स ऑन कराना है ना तुमको, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, हमको अगर भूल जाता है तो। हाउ टू चेक नॉर्मलिटी। नेक्स्ट है पेयर्स जो है रिलेटेड होने चाहिए। आपको ये लगे कि इसमें जो चेंज हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज करिए कि एक डेटा कलेक्ट किया गया, गवर्नमेंट ने हेल्थ पर विभिन्न शहरों में, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ने हेल्थ पर विभिन्न शहरों में किसी वर्ष में कितना फंड दिया, ठीक, एक वेरिएबल, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 20 अमाउंट, फंडिंग अमाउंट। दूसरा वेरिएबल, उसी वर्ष उन शहर से कितनी बीमारियां दर्ज हुई, नोट की गई। अब अगर हम दोनों को देखें, फंडिंग एंड डिजीज, नंबर ऑफ डिजीज, तो क्या इनके बीच में रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा? होगा। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव मीन्स फंडिंग बढ़ाओगे तो बीमारी की संख्या बढ़ेगी, तो पॉजिटिव का तो यही मतलब हुआ ना। हाँ, बहुत हो सकता है, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा तो अब देखेंगे हम लोग, ठीक है, एक एग्जांपल से। क्या है कि रिलेशनशिप, पेयर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये रिसर्चर तय करेगा। टूल में तो आप दोगे, वो कैलकुलेट करके कोरिलेशन दे देगा। नेक्स्ट, आउटलायर से फ्री होना चाहिए आपका डेटा। अगर आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को अपना टूल बना रहे हो तो आउटलायर चेक करने के दो तरीके हैं, एक है मीन और एसडी से चेक करते हैं, और एक है कि मीडियन और आईक्यूआर से टेस्ट करते हैं। लीनियरिटी होनी चाहिए, मीन्स पहले आप स्कैटर डायग्राम बना के देखो कोरिलेशन निकालने के पहले कि क्या वो डॉट एक लाइन के क्लोजर में है कि किसी कर्व के क्लोजर में है, ये आप वेरीफाई कर लो। Suggestions. If we found that pairs of observations fails to qualify the assumption of correlation, then we can go for other measure of dependency or relationship, and they are like this. ठीक है?